टाइमली आप लोग आ जाए कि ये बहुत लेट हो जाता है आप लोग को रिसीव करने में हमको। टाइमली आइए आप लोग। ओके, ठीक है। तो टॉपिक क्या है जान रहे हो ना? टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी हैव टू स्टडी टुडे। अभी आ ही रहा है लोग, दिक्कत ये हो जाती है। तो देखो, वी ऑलरेडी know that energy is the capacity of a body to do work. In earlier classes, we have learnt about different forms of energy: mechanical, heat, chemical, electrical, light, sound, nuclear, so on. These are interconversible energy, however, cannot be created or destroyed. What is energy? Already known to you. Energy, what is energy? Capacity to do work is known as energy. Capacity to do work is known as energy. There are different forms of energy. For example, heat energy, mechanical energy, chemical energy, light energy, sound energy, nuclear energy. Different forms of energy, and they are interchangeable. Create we can't create energy or not destroy energy. We can only change the form of energy. We are only able to change the form of energy. Energy cannot be created nor be destroyed by us. Only we can change the form of energy. Classification. So we need energy for our activity, from baking chapatis or cookies to sending astronauts into space. All forms of energy that we use every day are stored in different ways in various sources of energy. We already know that the substances which produce heat or burning is air are called fuels. फ्यूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना? फ्यूल क्या है? तो वेन या तो substance which during reaction with oxygen, if heat and light energy evolved, that are considered as fuel. Classification of sources of energy. बार बार आ रहे हैं, अभी तक लोग आ ही रहे हैं, बताइए कैसे पढ़ाएंगे? चाहिए था आ जाना एक बार सबको। बार बार कहते हैं समय से जुट जाओ, समय पे आ जाओ। ठीक है, तो वी क्लासीफाई द sources of energy on the basis of occurrence. Natural sources, natural energy sources are those which are made available to us by nature. Solar energy, wind energy, from water, hydro energy are some of the natural sources of energy. And then synthetic sources. Synthetic energy sources are those that use man-made materials as sources of energy. For example, chemical energy is stored in the batteries used in calculators. Synthetic forms battery chemical energy stored in the batteries is a synthetic source of energy. A physical state, the solid. Firewood, charcoal, coal are example of solid fuels. सॉलिड फ्यूल्स में क्या होता है? जस्ट आप देखते हो, वुड है, चारकोल है, कोल है, दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स. They have chemical energy. Whenever they react with oxygen, they give us light and heat energy. Liquid form, kerosene oil, petrol and diesel, we all
liquid fuels. Well-known form of energy-giving, chemical energy-giving liquid form: kerosene, petrol, diesel. Liquid forms of energy source which gives us energy, and then gas, petroleum gas, commonly used as LPG, liquefied petroleum gas, and natural gas, also used as CNG, compressed natural gas, are examples of gaseous fuels. तो गैसियस फ्यूल ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर हम मगअप कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सा गैस जलता है? विच गैस इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? यस, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. The mixture of butane and isobutane is used in LPG. Thank you. Availability, renewable sources of energy is a natural resource that can replenish itself naturally over a short period of time. Wind, sun, biomass from plants and hydropower from water are all resemble sources of energy. These are inexhaustible natural sources. हमेशा के लिए, हमेशा विद्यमान रहेगा, हमेशा नया से बनते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और replaced in short period of time are called non-renewable sources of energy. These are also called exhaustible natural resources. Fossil fuels like petroleum, natural gas and coal are non-renewable sources of energy. Renewable and non-renewable sources of energy both are known to you. Renewable जो बार बार बन जाए, बार बार जो कभी ख़त्म नहीं हो, और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार बन चुका है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे कोल और पेट्रोलियम। तो इसका बहुत जुडिशियली यूज करना है, बहुत सोच समझ के, ऐसे ही नहीं, ठीक है। चूँकि ये बार बार बनेगा नहीं, इसको बनने में करोड़ों साल लगता है। अब फॉसिल फ्यूल्स का रहा At present, most of our energy needs are met through non-renewable energy sources, mainly fossil fuels, petroleum, natural gas and coal. Fossil fuels are so called because they were formed over a period of millions of years by the action of heat from the earth's core and pressure from rocks and soil on the remains of dead plants and animals. The fossil fuel means what? Fossil fuel means what? The fuel which is made by nature thousands or millions of years ago. Forms are petroleum products and coal. Coal and petroleum are the natural fossil fuels. Wood as a fuel. Now again, solid wood as a fuel. Wood is a major renewable natural resource. Wood is a major renewable natural resource. The combustion of wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in steam engines and steam turbines that generate electricity. Combustion of wood produces heat which can be put in a variety of uses. However, it also produces other gases like CO2, carbon dioxide and carbon monoxide, which are undesirable, irritating and dangerous. Wood, of course, wood is a natural source which gives us energy. This is also considered as renewable natural resource of energy. But
when we consume this type of fuel, wood fuel, it also produces toxic gases like carbon dioxide and carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon monoxide is a very dangerous gas. Why carbon monoxide is dangerous gas? Can you speak? Anyone? Jyoti? Yes, because carbon monoxide is very reactive gas. It absorbs oxygen present nearby it, so carbon monoxide becomes carbon dioxide 2CO plus O2. 2CO plus O2 क्या बनता है? देखो 2CO plus O2 becomes 2CO2. ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, दिखाई दिया ना? 2CO, 2 molecules of carbon monoxide and 1 molecule of oxygen react together and they form 2CO2. 2CO2 carbon dioxide gas produced. In this way, due to the lack of oxygen gas, we feel different types of problems. Okay? Now coal is a readily combustible black rock or brownish black sedimentary rock. Coal is one of the fuels that has been used for cooking food. However, it produces a lot of smoke and foul-smelling gases which cause air pollution. Worldwide, coal, a fossil fuel, is the largest source of energy. Used for generation of electricity. आज के भी दिन में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो वो किससे बनता है? कोल से बनता है. कोल से स्टीम बनता है और स्टीम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. Occurrence of coal is found deep under the surface of the earth. The major coal mines in India are located in Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. The largest coal mines are at Bokaro and Jharia in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. Formation of coal was formed from the plant remains got buried deep under the earth's crust. Over a large period of time, the chemical and physical properties of these plant remains were changed through geological actions that lead to the creation of this solid material. The process of conversion of dead plant materials into coal is called carbonization. हाँ, एक याद रखिएगा, कार्बोनाइजेशन हमेशा पूछा जाता है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. व्हाट डू मीन बाय कार्बोनाइजेशन? तो इसके लिए क्या जवाब होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ठीक है. मतलब ये क्या है? एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, हाउ कैन यू कोरिलेट दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Sun is the ultimate source of energy. How can you relate? बोलो. Sun is the ultimate source of energy. हाँ जी, शिवम क्लास 8C. Are you here? Yes, sir. Just can you give the answer of my question? How can you prove Sun is the ultimate source of energy? Just you have to correlate that in coal the source of energy is sun. How can you correlate? कैसे कोरिलेट करोगे बेटा?
कि जो कोल में एनर्जी है, जो पेट्रोलियम में एनर्जी है, वो भी सन का ही एनर्जी है। बोलो। देखो, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट था, प्लांट्स का लकड़ी था, वो क्या हुआ, अंडर ब्यूरिड हो गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो कोल में कन्वर्ट किया। तो बहुत पहले, आज से करोड़ों साल पहले सोलर एनर्जी के द्वारा ही ना एनर्जी गेन किया था प्लांट। बोलो, वही एनर्जी ना रिजर्व फॉर्म में आ गया कोल में। बात समझ गए? इसी प्रकार पेट्रोलियम में भी होता है। पेट्रोलियम कैसे बना? तो मान लो समुंदर के नीचे था, तो समुंदर के नीचे जीव जंतु था और बहुत सारा शैवाल, एल्गा पाया जाता है। एल्गा बहुत घना जंगल एल्गा का भी होता है समुंदर के अंदर, इनसाइड द बॉटम ऑफ सी। ऐसा उथल पुथल हुआ कि वो ऊपर आ गया, पानी वहाँ से हट गया। बोलो, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर वो चला गया, तो वही क्या बन गया? वही बन गया पेट्रोलियम। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो भी एनर्जी कहाँ से गेन किया था? सन से किया था या नहीं किया था? जो भी प्लांट था या कोई भी जीव था समुद्र के अंदर, सारा का सारा ना कन्वर्ट कर गया। बोलो, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? वो भी तो सन से ही लिया था ना अपना एनर्जी। वो एनर्जी जो गेन किया था वो कौन चीज से किया था? सन से किया हुआ था। बात समझ में आई? हेलो। इसके बाद आपका आया नेक्स्ट। अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। 10:02 तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत दिक्कत होती है, तो फ्लो रुक जाता है पढ़ाने का। समझ रहे हैं आप लोग? फ्लो खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए, कार्बनाइजेशन तो हुआ, ये आएगा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ कोल, तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एंड द टाइम पीरियड for which fossils remains buried under the surface of earth, different varieties of coal have been formed। तो इसमें क्या कर रहा है? टेम्परेचर से और प्रेशर पे निर्भर है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, बहुत ज़्यादा समय तक अगर ज़मीन के अंदर रह गया, अंडर द अर्थ, तो अलग अलग तरह का टेम्परेचर और अलग अलग तरह का प्रेशर था, तो अलग अलग तरह का कोल का निर्माण हुआ। ठीक है, depending on temperature and pressure conditions and the time period for which fossils remain buried under the surface of earth, different varieties of coal have been formed। Different types of coal are peat, lignite, bituminous and anthracites। कौन कौन फॉर्म है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट्स। These are the forms of coal: peat, lignite, bituminous and anthracites। These different types of coal differ from each other in terms of their content of volatile material and the percentage of carbon, moisture and other elements present in them। देखो, बहुत सारा गैसियस फॉर्म में वोलेटाइल होता है। जब उसको जलाते हैं तो बहुत सारा गैस निकलता है, अनवांटेड अनडिजायरेबल गैसेज निकलता है। ठीक है, जो डेंजरस भी है, बहुत अच्छा नहीं है वो। इसके बाद कार्बन उसमें कितना है, ये बात पर निर्भर करता है। कार्बन कंटेंट उसमें कितना है, मॉइस्चर कितना है, और अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। चूँकि कार्बन के साथ सल्फर भी होता है। सल्फर जब आ गया तो वो अशुद्ध होता है, बहुत ज़्यादा वो गैस बनाता है। जब उसको जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, जो कि हार्मफुल गैस है, क्योंकि ये एसिड का निर्माण करेगा। जब वातावरण में का ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद होगा, जलाएंगे हम कार्बन, लेकिन कार्बन के साथ अगर सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। ये बताया हुआ चीज़ है ना? बताए थे ना, भूल गए? याद है?
याद है कि देखो एस प्लस O2 क्या बनाता है? एस प्लस O2 क्या बनाता है? SO2। ठीक है, और 2SO2 अब प्लस O2 क्या बनाता है? 2SO3 कौन सा गैस बनाया? कौन सा गैस बनाया? SO3 गैस बनाया। कौन सा गैस? अब देखो, ठीक है, अब SO2 जब रिएक्शन करता है, देखो जैसे SO2 प्लस H2O क्या बनाता है? SO2 प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? H2SO3। वेरी गुड, H2SO3। इसको क्या कहा जाता है? Which acid? Which acid? What is the name of this acid? H2SO3? Yes, sulfurous acid. Thank you. Same way, SO3 plus H2O। SO3 plus H2O जब रिएक्ट करता है H2SO4 क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, जिसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी डेंजरस है। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो पाया जाता है कोल के साथ, उसके अनुसार उसका नाम बदल जाता है और उसका क्वालिटी बदल जाता है। अब पीट कर रहा है, सबसे पहले पीट, PAT पीट, PEAT पीट इज ए सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस that is made up of 30% carbon. It is the earliest stage during the formation of coal. तो सबसे कम कोल में कार्बन किस में है? पीट में है। तो बहुत अच्छा क्वालिटी का ये नहीं माना जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? पीट इज सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 30% कार्बन। इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या है? लिग्नाइट। लिग्नाइट हैज ए कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%. It is regarded as the lowest grade of coal. It has been used mainly for electric power generation. इसमें भी 38% है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा विशुद्ध नहीं है का, इसमें सल्फर का कंटेंट भी ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। आप लोग तो आप अपने लोग को म्यूट कीजिए आप लोग। ठीक है, बिटुमिनस कोल कहता है हैज अबाउट 65% कार्बन। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड इज मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। बिटुमिनस कोल है अबाउट 65% कार्बन। कितना है कार्बन कंटेंट? कितना है? 65%. इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। इसके बाद एंथ्रासाइट। व्हाट डू यू वांट? आदित्य कश्यप 8C, what do you want to speak? Aditya Kashyap, what is problem with you? कोई दिक्कत है बेटा? तो आप अपना वीडियो ऑन कर लो। Do you want to say something? Anthracite is a hard coal and contains about 90% carbon. It is regarded as the highest grade of coal. Anthracite is the hard coal and contains over 90% carbon. It is regarded as the highest grade of coal. The best quality of coal. ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में है? एंथ्रासाइट में है। ये पूछा जाता है।
ठीक है, एंथ्रासाइट। Again, destructive distillation and its products. Destructive distillation and its product, strong heating of coal. In hello, Muskan, Muskan 8C, are you here? कैमरा ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो। मुस्कान, निशा भारती 8C, निशा भारती 8C, आर यू हियर? वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन नहीं है आपका। वीडियो ऑन करो पहले। निशा भारती 8C, मेरी आवाज जा रही है तुम तक? हेलो, तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके ही रखो बेटी। हाँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? बोलो। हाँ, strong heating of coal in absence of air is called destructive distillation. We obtain many products like coke, coal and coal tar, coal gas through destructive distillation of coal. का देखो कह रहा है, ये पूछेगा बाबू, दिमाग में रखिएगा इस बात को आप लोग। All students please remind it. This one is the very important question from examination point of view. Destructive distillation and its product. Tata strong heating of coal in absence of air is called destructive distillation. We obtain many products like coke, coal, tar and coal gas through the destructive distillation of coal. Coke, what is coke? The coke is a hard and porous substance. Its main use are listed below. कह रहा है कोक में कि it is a hard and porous substance. Its main uses are listed below. पहला है, it is used as domestic as well as industrial fuel in stoves and furnace. It gives little or no smoke. ये पोरस होता है और इसमें जब ये चलता है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है तो इसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलता है। ये गैस पहले ही हटा दिया जाता है, तब कोक बनता है। इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिडक्शन में इसका यूज है। मेटल का ऑक्साइड को मेटल में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोक। तीसरा है, इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस CO+H2। देखो भाई, एक चीज़ याद रखना, वाटर गैस पूछा जाता है, वाटर गैस में क्या क्या कंटेंट रहता है, तो याद रखिएगा, यहीं पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, दो गैस एक साथ रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो इसको क्या कहा जाता है? वाटर गैस। व्हाट इज वाटर गैस, ये बार बार पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर मेक फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस। वाटर गैस में लिख रहा है CO+H2, तो वाटर गैस कॉम्बिनेशन है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। याद रखना इस टॉपिक को, इस बात को, CO+H2 को क्या कहते हैं? दैट इज वाटर गैस। मिस मत करना, एक नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जरूर से इसको याद रखना।
नेक्स्ट है कोल तार। इट इज ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पहला सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है कोल टार से, ठीक है। तब कोल टार कह रहा है इट इज ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्री विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। जहाँ कोल की अधिकता रहती है वहाँ कोल गैस में कन्वर्ट करके कोल गैस का यूज किया जाता है। कोल गैस में क्या क्या पाया जाता है ये आपके बुक में नहीं है, इसलिए ये नहीं देगा, लेकिन वाटर गैस जरूर से याद रखिएगा। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड H2। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होता है, दोनों का मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस, और ये एक अच्छा गैसियस फ्यूल का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आया पेट्रोलियम। तो कहता है पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल। इट इज डार्क कलर्ड विस्कस एंड फूल स्मेलिंग लिक्विड, commonly called crude oil. It is found in rock formations in the earth. Its name is driven from Latin word petra meaning rock and oleum meaning oil. Literally it means rock oil. इसका मतलब literal meaning, शब्द का मीनिंग क्या है पेट्रोलियम का, तो रॉक ऑयल। रॉक ऑयल हो गया। ये इतना आज, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए। अब देखो मेन है, देखो बाबू, ये सारा छोटा छोटा चीज़ है लेकिन एक एक नंबर का महत्व है, ठीक है। कहीं से मिस मत कीजिएगा ये सब चीज़, समझ रहे हैं ना आप लोग? निशा भारती 8D is here। भाई कैमरा ऑन करो। आप लोग को कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो आप लोग? कहाँ तुम्हारा आ रहा है फोटोग्राफी? कहाँ आ रहा है तुम्हारा फोटोग्राफ? तो नहीं नजर आ रहा है, क्या दिक्कत है? फिर से देखो, ऑन नहीं है। क्या तुम्हारा नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलें? ये बताइए अब कितने तरह का कोल है निशा भारती? मेंशन द नेम्स। Which is the best coal? Why so? Okay. Okay. अब there is no time at all. So tomorrow, from here, petroleum, occurrence of petroleum, we will start tomorrow. So please all of you study this chapter, ठीक है। जस्ट इस चैप्टर से हम कल क्वेश्चन ओरली पूछेंगे, इसलिए इसको पूरा का पूरा तैयार करके आइएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रह गया है, और इसके बाद मेन नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इतना ही ना है, बोलिए। अब बता सकते हैं आप लोग व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन क्या है बता सकते हैं? हाँ बोलो। ज्योति, ओनली यू स्पीक। ओके, ओके, टाइम अप हो गया है, कभी भी ये चला जाएगा, ठीक है, इसलिए हम खुद ही छोड़ रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू। और टाइमली आप लोग आइए, 10 बजे तो ठीक 10 बजे आप लोग रहिए, मतलब अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक 10 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक 10 बजे। 1 सेकंड का भी मिस हम नहीं करते हैं, 1 मिनट भी पीछे लेट नहीं रहते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने आप को जोड़ लीजिए, ठीक है? हेलो, ओके, 10 बजे एकदम बिल्कुल बिल्कुल 10 बजे सारा काम छोड़ के यहीं रहिएगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको ऑफ कीजिए, तो ये ऑफ नहीं हो रहा है हमसे।